a small boy from Bilaria Education Institute who would like to recite some verses. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. They say the world is full of diamonds and gems, and I'm sure we have many of them today with us here. So with these notes, I would like to extend my heartiest welcome to our chief guest for the occasion, Director Tourism Kashmir, Dr. G.N. Ettu Saab, and all the distinguished guests. I would request Manzoor Wanu Saab to please present a flower bouquet to Dr. Saab and formally welcome. Can we have a round of applause, please? I would request Manzoor Saab to also present a flower bouquet and welcome Mushtaq Ahmed Margoom Saab, Dr. Mushtaq Ahmed Margoom Saab. Can we have a round of applause? Also, I would request Manzoor Saab to welcome G.N. Var Saab, President Private School Association. Can we have a round of applause? I would request Haji Saab to also present a flower bouquet to our distinguished guest. I would now request Haji Manzoor Wanu Saab to please come and give welcome address to our August gathering. हमने आज जो आपको यहाँ पर बुलाया है, सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ इस सर्दी में, और आज फैमिली डे होता है और आप यहाँ आए, इसके लिए मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा, अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर। आमीन। ये जो आज का जो इवेंट है, असल ये मेन ये हमें अल्लाह शोहरत की भूख से बचाए, हमें ये मसला नहीं। एक तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के NGOs जो है उनको आज हम थोड़ा सा हौसला अफजाई, एक वो, और दूसरा हमारे देहातों से आज विंटर में हमारे को बहुत मुश्किल होता है घर घर जाता था, हर दिन हमारे फूड पैकेट्स निकलते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह या कुछ जो भी काम होता है, माई टीम डू एड्रेस इट एंड दे मेक श्योर सेम डे वो एड्रेस हो जाए, तो उनको भी हमने बुलाया। तो साल में हम एक दो ये करते हैं, मगर यहाँ पर हर इलाके में सबसे पहले है कि हम सिटी और नॉर्थ देखते हैं, चाहे वो मकान हो, चाहे वो फूड पैकेट्स हो, चाहे वो मेडिसिन की तरफ हो। अभी हाल ही में जो अभी गोल्डन गार्ड है, इससे बहुत फर्क है, और यहाँ जो NGO सब काम करते हैं, जैसे हमारा फूड पार्क उसमें हर रोज 5,000 इधर, 4,000 इधर, 10,000 इधर, मैं तो ऊपर ही उनको कहता हूँ आज मुझे 50,000 देना, और शाम तक मुझे आते हैं यहाँ हमारे कश्मीरी डोनर्स, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कभी कहीं पर मकान ऐसा होता है, ऐसी हालत होती है, डॉक्टर साहब मुझे छोड़ता ही नहीं। अब मैं बात ही कहता हूँ, मैंने कल इनको थोड़ा सा मैंने कहा यार क्या कर रहे, कल और इस लिस्ट में डालना चाहता, कल रात को 10 बजे शायद फोन में मुझे बाहर काम करना है। हम मेरे हजरत थे हाफिज पटेल साहब, वो इंग्लैंड में थे, उनका इंतकाल हो, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। वो हमेशा फरमाते थे करते करते मरना है और मरते मरते करना है। ये बहुत बड़ी बात है दुनिया के लिए।
دنیا کے لیے ہم بہت کام کرتے ہیں. میں نے وہ لائف بھی دیکھی ہے. میں نے بل کلنٹن دیکھا, ہلری دیکھا, 5 اسٹار ہوٹلز دیکھے. میرا تمنا تھا کہ میں آگے ہوٹلوں میں جاؤں, دکانوں میں جاؤں, یہ ایک تمنا تھا اور میں آگے چل رہا تھا. مگر اوڑی میں جو سر 19 سیکنڈز کا جو وہ ارتھ کوئک آیا, اس نے میری کمپلیٹلی زندگی چینج کی. میں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, تقریباً 95% اب میں اس کام میں ہوتا ہوں صبح شام. مگر میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ جو سکون مجھے اس میں آ رہا ہے وہ سکون اس دنیا میں نہیں. وہ جو لوگ ہیں ان بیچاروں کے پاس 2 منٹ کا ٹائم نہیں ہوتا, سکون نہیں ہوتا, کچھ نہیں, مگر اس کام میں سکون قلب آتا ہے. I would request Mr. Mushtaq Margoon Saab to please come here and address the gathering, sir. 2-3 منٹ کیا 2-3 گھنٹوں میں بھی بات, دل کی بات بتائی نہیں جا سکتی جب ایسی ایک محفل. وہ اس لیے کیونکہ یہاں اتنی ہستیاں ہیں, انڈیویجولز نہیں ہیں میری نظر میں. میں 40 سال کی بات کر رہا ہوں نفسیات کے معاملے میں, چونکہ بات ہو رہی ہے. اور اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جو تحفہ ہمیں ملا جب ہم یہاں بیٹھے تو وہ ایک معصوم سے فرشتے نے اس کی ابتدا کی, اور وہ بھی وہ دیا کہ سورہ دعا. میری صرف التجا یہ ہوگی این جی اوز سے, کیونکہ این جی اوز کا جو ہم نے معاملہ دیکھا ہے 90s میں دکانداریں کھلی چلی, ہر کسی کا رشتہ دار جو بھی ہوتا تھا ایک این جی او چلاتا تھا, اس میں سے بھی نکل کے. اور آج جو ماڈلز ماشاءاللہ آج کے جو, تو انہوں نے وہ تھپڑے کھا کے اپنے آپ کو ایسے کھڑا کیا ہے کہ جسے دین آپ کہتے ہیں, وے آف لائف, اس کا ایک پریکٹیکل ماڈل. اور میں کہوں گا چونکہ میں جیسے منظور صاحب نے کہا کہ واپس جا رہا ہوں, اور انفرادی طور لوگوں کی دکھ درد یا ڈپریشن کی بات, وہ اس کا حل نہیں ہے. میں کبھی مینٹل ہاسپٹل, وہاں ایک سٹگما تھا, عارف صاحب ول بیئر می آؤٹ, اسٹوریاں چلتی تھیں بہت. یہ ان دنوں ہم مل گئے کیونکہ میڈیا اور مینٹل ہیلتھ کا اتنا سارا سلسلہ رہتا ہے. میں 2 منٹ لوں گا آپ کے زیادہ, لیکن یہ ہے کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ اس میں باتیں کرنے کے لیے اتنی چیزیں ہیں. جیسے ڈاکٹر یتو صاحب یہاں ہیں, پھر ایک فرق نہیں ہے, کیونکہ ابا جان کہا کرتے تھے جب یہ ایجوکیشن کے پہلے اس پل میں تھے کہ چناب ویلی اور یہ جو پیر پنچال سارا بیلٹ ہے ابھی کنیکٹ ہو رہا ہے اس طریقے کے ساتھ, کیونکہ میں وہیں پلا بڑا ہوں. مطلب میرے 8-10 سال اس سائڈ گزرے ہیں. جب میں بچہ تھا تو یہ جو کانگڑی کا ایک سلسلہ ہے جو منظور صاحب کر رہے ہیں, انفرادی چیز نہیں ہو رہی ہے. مجھے یاد ہے ان دنوں جو ایجوکیشن کا سلسلہ تھا, میں 7 یا 8 سال 60 سال پہلے جا رہا ہوں, نانا جان وہاں کے ایجوکیشنسٹ تھے. وہ ہمیں یہ جو آج کل داستانیں ہوتی ہیں وہ بھی انٹرنیٹ کو یرغمال ہو کے ہم چھوٹے بڑے ہیں, ان دنوں سیدی صاحب کا گلستان بوستان وغیرہ کا سلسلہ تھا, اور اس میں مجھے ابھی بھی نانا جان کی وہ باتیں یاد آ رہی ہیں جب وہ ہمیں اوور چوپیا تھا بنا اڑا کوشش اڑا پرشن واسا شعوریہ 6 یا 7 سال کا ہوتا حضور. تو ان کا یہ تھا گھر نہ باشد بے بے اندر نارفا جانی شیری میں برایت خامکھا. وہ ہمیں سکھاتے تھے کہ کانگڑی کی امپورٹنس کیا ہے, کیونکہ تھوڑا سا وہ آسودہ حال تھے تو اس لیے لوگ آتے تھے, وہ تھوڑے سے کولے لیتے تھے اور کوئی چیز لیتے تھے. وہ نہیں ہو رہا ہے. جب وہ نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں اور ایکٹیولی کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں جو ایک ماڈل جن مطلب میں ان کے ساتھ آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا ہوں, 2 مثالیں دوں گا بس. کرنا میں بھی ہم ملے, منظور صاحب وہاں یہ جو کہتے ہیں فوٹوگرافی تو پہلے دنوں ڈیزاسٹر میں ہوتی ہی ہوتی ہے, جو بدقسمتی آج بھی وہی ٹرینڈ ہے. کووڈ کی لوگ بات کرتے ہیں, جو گھر مرا وہاں فوٹوگرافی کافی ہوتی ہے, لیکن جو اس کے بعد وہ they have to fend for their needs, they are disillusioned, and پہلے تو ان کو آسمان کہا جاتا ہے, ہم آپ کے حوالے کر دیں گے, پھر ان کو کچھ نہیں ملتا ہے. لیکن وہ دین کا یہی ایک سلسلہ. اور میں نے جو کہا کہ اس معصوم سے بچے نے جو ہمیں فارمولا دیا کہ کیا کیا نہیں پہاڑ ٹوٹتے ہیں ہم پہ, لیکن اگر بے حسی اور نا امیدی ہمیں اس کا علاج کرنا ہے تو میں 2 مثالوں پہ اکتفا کروں گا. پہاڑ کے اس پار کی بات میں نے کی حضور, جون میں دور بستی, وہاں بجلی بھی نہیں ہوا کرتی تھی. اس سال بجلی ہے, محمد کا علاقہ ہے, وہاں 15 گھر ہی نہیں ہے, 15 مکان ہیں جس میں 32 گھر بستے ہیں. وہ جل گئے. پہاڑی علاقہ ہے, کوئی آنا جانا نہیں,
12 दिन के बाद ही मंजूर साहब वहां खुद जाते हैं। क्या मंजूर साहब इतने, माफ कीजिएगा ये लफ्ज इस्तेमाल, इतने बेकार हैं कि इनके पास इतना टाइम है, कोई काम ही नहीं है, वहां कुछ होता है, उससे क्या होगा? वहां गए, डॉक्टर साहब इनके साथ थे, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो मिलती रहती है। वो ये एक रोल मॉडल के तौर पे गए, वहां के जवानों को गैरत आई और दे विल बेयर मी आउट। उन्होंने खुद ही उनका सिर्फ 5 घर अब रह गए जिनका पहाड़ी के इस साल इस पार आई है। ऐसे मौक़ों पे जो दिल में आता है तो सीधी सी बात है, वही बात आदमी कह देता है। रामू साहब से मैंने जो चीज़ सीखी वो मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि पूरी ज़िंदगी जितना भी मैंने तालीम हासिल की, ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरा, तो जो मैंने इनसे सीखी वो बिल्कुल अलग चीज़ थी। वो ये चीज़ थी कि नॉलेज हमारे पास है, इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब तो हम इतना भी आगे गुजरे हैं कि सुबह गुड मॉर्निंग और पता नहीं क्या अच्छी चीज़ें भेजते रहते हैं, ये जानते हुए कि हमें किसी ने नहीं कहा कि आप भेजिए, लेकिन हम भेजते रहते हैं। व्हाट्सएप अब ऐसी मुसीबत बनी है कि अब तो डिलीट करना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है, टैग करते जा रहे हैं। वाम साहब ने जो चीज़ सिखाई कि किस तरह से काम अमली किया जाता है, बातों से ज़्यादा किस तरह से काम अमली किया जाता है, और वही इस्लाम। इसी वजह से इस्लाम ने यही हमें तो तालीम दी है कि आप जो कहते हैं वो करो, अगर आप वो नहीं करते हैं तो अल्लाह को बहुत नापसंद होता है कि क्यों आप वो बात करते हो जो आप फिर अमल नहीं करते। तो इस वक्त अल्लाह के फजल करम से मुबशर वफाई साहब यहाँ बैठे हैं। जब उन्होंने एक कॉरपोरेट शेयर होल्डिंग का एक कॉरपोरेट अंदाज से स्कूल शुरू करने का एक जो मॉडल दिया, कितने मुश्किलात उनको झेलने पड़े ये मैं जानता हूँ। डॉक्टर यूसुफ साहब चूँकि अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ कितने इदारे काम कर रहे हैं, और हमें फ़ख्र है अपने ऑफिसर्स पे जो जहाँ जहाँ ये समझते हैं कि हमें मदद करनी चाहिए वो करते हैं। अभी जो है अपने डॉक्टर मरबूब साहब ने कहा, पिछले दिनों में चिनाब वैली और वो पीर पंजाल रेंज गया था, डिफरेंट जो है जगहों पे, वहाँ भी एक जज्बा स्कूलों में ऐसा पैदा होगा कि स्कूल आप प्रैक्टिकल लाइफ से अमलन कुछ करना चाहते हैं। जैसे आपने एक फैसला लिया कि किसी भी यतीम बच्चे से फीस नहीं ली जाएगी, जो भी यतीम बच्चा होगा उससे फीस नहीं ली जाएगी अगर वो डिजर्विंग है। इसी तरह से अगर कोई भी गरीब बच्चा उससे फीस नहीं ली जाएगी, चाहे कोचिंग सेंटर्स हो चाहे स्कूल हो। हमारा ये जो है एक रहा, ये हमें जहन में नहीं था कि हमारी जिम्मेदारी है। डॉक्टर यूसुफ साहब जब डायरेक्टर एजुकेशन थे तो उन्होंने अमलन एनफोर्स किया कि 10% हैज़ टू बी देयर, जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है जाना चाहिए। और हमें जो ये इंस्पायरेशन मिली वो वांगू साहब से मिली, और कहते हैं कि ये वो चीज़ है जो मैं अक्सर, और जो हकीकत है मैं आपको बताऊं, जब वांगू साहब की कोई छोटी मोटी, पहले तो उनकी कोई छोटी फंक्शन होती नहीं है, हमेशा हर फंक्शन बहुत ही इम्प्रेसिव होती है, लेकिन इनकी अगर कोई छोटी फंक्शन हो तो मैं बेताब होता हूँ कि कब पहुँचूँ। हाँ, बड़ी फंक्शन में आओ ना हो वो उतना नहीं है, लेकिन छोटी फंक्शन में क्योंकि मुझे पता है कि वो वहाँ से कुछ शुरुआत करना चाहते हैं। मुझे मालूम है कि वो बुनियाद है, वो बुनियाद दे रहे हैं और बुनियाद की सबसे बड़ी अहमियत है। तो हकीकत ये है कि इस वक्त तालीम जो है, खासकर चूँकि आप यहाँ बहुत ही हमारे इंस्टीट्यूशन यहाँ तशरीफ रखे हुए हैं, इस वक्त तालीमी निज़ाम बहुत ही क्राइसिस में है। ये नाम नहाद ये पेरेंट एसोसिएशन वगैरह, आपको मालूम है कि इनके पीछे कौन अनासर होते हैं। इस तरह से तालीम को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। हम सब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हमें अपने प्राइवेट इदारों को, स्कूलों को मजबूत से मजबूत तरह बनाएं, ताकि देखिए हमारा प्राइवेट सेक्टर मजबूत है तो हमारी सोसाइटी मजबूत है, हमारी सोसाइटी मजबूत है तो हमारा मुस्तकबिल महफूज है। वमा अलैना इल्लल बलाग। प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर पीपल लाइक अस, क्योंकि यहाँ पे जो है कश्मीर में बहुत अच्छा काम हो रहा है। वी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दैट, क्योंकि हम मतलब हमारे जहन में ये है कि कुछ नहीं हो रहा है, सब गुड थिंग्स आर हैपनिंग आल्सो। सो जहाँ जहाँ अच्छी चीज़ें हो रही है, वी नीड टू गेट देम ऑन सिंगल प्लेटफॉर्म। वो मुझे लगता है सबसे बड़ी काम जो हमारा इस वक्त यही है कि जिस भी सेक्टर में
چاہے سوشل سیکٹر ہو, NGOs ہو, کہ وہ ہمارے ایجوکیشن کا ہے, انوائرمنٹ کا, جہاں پہ بھی کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو جو اس وقت کی ضرورت ہے کہ ان کو ہم ایک پلیٹ فارم پہ لائے تاکہ اور اچھا کام ہم کر سکیں. تو ہم ہائیلی تھینکفل کہ منظور صاحب از ڈوئنگ اے گریٹ ورک, پریکٹیکلی کام کرتے ہیں, اور ہم بھی اس لیے ان کو پسند کرتے ہیں. ہماری دوستی اس لیے نہیں ہے کہ کسی چیز کے لیے, کیونکہ ہمارا قرآن اور حدیث اور ہمارا مذہب اور اخلاقی طور بھی یہ بولا جاتا ہے کہ آپ دوستی کرو کوئی اچھی چیزوں کے لیے. تو جو ہماری دوستی بھی ہے وہ اسی لیے ہے کہ یہ اچھا کام کر رہے ہیں اور ہم ان کی مدد کر رہے ہیں آپس میں, ہم آپس میں کولیبریشن کر رہے ہیں. لون صاحب یہاں پہ ڈوئنگ گریٹ ورک, انہوں نے پہلے بزنس میں ان کا اچھا تھا, کنسٹرکشن میں, اب ایجوکیشن میں آ گئے, اب فلنتھراپی ایکٹیویٹی میں بھی آ گئے. تو منظور صاحب نے ایک پلیٹ فارم ان کو پرووائڈ کیا. پچھلی بار وہاں پینٹو نہیں مل رہا تھا اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو, چلا صفائی جو ہے نا گل سر خوشحال سر میں, وہ پلیٹ فارم نہیں مل رہا تھا, پینٹو نہیں مل رہا. لون صاحب نے پینٹو بنایا, بھیج دیا ان کو, کام ہو گیا, کام سٹارٹ ہو گیا. سو وی نیڈ ٹو کولیبریٹ وتھ ایچ ادر, اور آپس میں تال میل کی ضرورت ہے. اینڈ وی نیڈ ٹو ہیو سچ فریکوینٹ انٹریکشنز. 15 دۄہن منٛز اکہِ لٹہِ آسان رٮ۪تۍ اکہِ لٹہِ میٖٹنٛگ آسٕنۍ پانہٕ ؤنۍ, کِہیٖنۍ نہٕ توتہِ کرو کتھ باتھا, تُہۍ کوٚت وٲتِو, کیٛاہ چھِو کران. تہٕ یِم تہِ اَسہِ سوشل سیکٹرس منٛز کٲم کرن وٲلۍ لوٗکھ چھِ, تو میں چاہوں گا کہ ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے, ریگولرلی انٹریکشن ہونی چاہیے تاکہ ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ اچھا کام کر سکیں. بہت بہت شکریہ. Thank you so much, Raja Saab. Raja Muzaffar Saab, we've always seen you active in the environmental causes, sir. I would now like to call Ms. Shafaqat Jahan, renowned academician. Please, ma'am, if you can come here and start. اتنے ستاروں کے بیچ کسی چراغ کو بلایا جائے تو وہ شاید سورج کو روشنی دکھانے کے مترادف ہوگا. میں اپنے ایک حقیر سے تجربے سے یہ کہوں گی کہ میں نے بھی زندگی کو اور اپنے فرائض کو شاید اپنے ریٹائر ہونے سے کوئی چند مہینے پہلے احساس میں لایا, جب بانگو صاحب ہمارے ہاں میرے بیٹے سے ملنے آئے تھے اور بات چیت کرتے کرتے نماز کا ٹائم ہوا تو نماز پڑھنے لگے. میں چائے لے کے جو سامنے گئی تو کہنے لگی جی میں نے اسکول کھولا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ کوئی اس میں ایسا بھی ہو کہ جو لاغرض طریقے سے اسکول کو دیکھے. تب میں ملازمت میں تھی, تو اتنا سننے کے بعد ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں پڑھی لکھی بھی ہوں یا میں کوئی کام بھی کرتی ہوں. تو یہ کچھ تب سنا رہے تھے تذکرہ اوڑی کا اور ان کے ریہیبلیٹیشن کی باتیں ہو رہی تھی, میرے بچے کے ساتھ ہی ہو رہی تھی, لیکن انہوں نے بڑے مختصر سے الفاظ میں یہ کہا اور میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بانو صاحب آج تک جو میں نے نوکری کی ہے میں نے اپنا ذریعہ معاش کے لیے نوکری کی ہے. شاید میرے اتنے فرائض پورے نہیں ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ڈیمانڈ کیے تھے کہ مجھے وہ فرائض پورے کرنے ہیں, لیکن آپ سے وعدہ رہا کہ اگر آپ چاہیں میں آپ کے اسکول کی مدد ضرور کروں گی, جب بھی چاہیں میں ایک خادم کی طرح آپ کے لیے کھڑی ہوں, آپ کے انسٹیٹیوشن کے لیے کھڑی ہوں بغیر کسی عوض کے, کیونکہ کمایا میں نے اتنا ہے جس پہ میں جی رہی ہوں اور آئندہ بھی اتنا کماؤں گی کہ جس پہ میں جیوں گی. اس ادارے سے مجھے کسی معاش کی ضرورت نہیں ہے, اس کے علاوہ میں آپ کی خادم ہوں. جب جہاں جیسے آپ بلائیں میں آپ کے اسکول کے لیے ایک خادم کی طرح کھڑی ہوں. I would now be calling distinguished guest, that is Dr. Farooq Ahmed Kullu Saab. ہم اس بات کے معترف ہیں کہ بانگو صاحب نے ہر ایک چیز میں جہاں جہاں ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ کسی کی ریہیبلیٹیشن کرنی ہے, میں خود والنٹری میڈیکل سوسائٹی کے ساتھ منسلک ہوں یا ہیلپ سبا کینسر چیریٹیبل ٹرسٹ کے ساتھ منسلک ہوں, جہاں جہاں ہمیں ان کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے یہ آگے آتی ہیں اور بڑی دلچسپی سے لوگوں کو بحالی کے
जो भी मतलब ज़रूरियात होती हैं उनमें ये पेश रहते हैं। एनवायरनमेंट के हिसाब से जो काम इन्होंने किया, इसी निगीन से शुरुआत की। आज देखिए गिल सर, ये आपने देखा क्या, खुशहाल सर, आपने देखा कि किन हालात इन्होंने काम किया और हमारे लिए एक मॉडल दिया। Thank you so much, Dr. Saab. I would now request our Honorable Chief Guest for the occasion, Director Tourism Kashmir, Dr. Jamil Akhtar Saab, to please address the gathering and share his expertise and knowledge. सबसे पहले मैं आज इस मुबारक फंक्शन पे जो हमारे मुंबई से आए हुए मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, मैं अपनी तरफ से और पूरे कश्मीर की टूरिस्ट फ्रेटर्निटी की तरफ से इनको इस्तकबाल करता हूँ, इसलिए कि यही वो लोग हैं जो हमारे एम्बेसडर बन कर के बाहर लोगों तक मैसेज पहुँचाते हैं कि हमारे यहाँ किस तरीके के काम हो रहे हैं, खासतौर से जो सिविल सोसाइटी की तरफ से इनिशिएटिव्स हैं। गवर्नमेंट तो करती ही करती है और गवर्नमेंट का काम हर जगह जो है वो दोहराया जाता है, लेकिन सिविल सोसाइटी के ज़रिए से जो सिंसियरली जो इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, शायद उनकी ज़्यादा तर्जुमानी हमारे समाज में नहीं होती है। इसलिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ यहाँ आने के लिए। इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि पेंडेमिक के पीरियड की वजह से जो पिछले हमारे 2 साल या 2.5 साल इसमें गए हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान पूरी दुनिया के लिए था और वैसा ही हमारे लिए कश्मीर में भी। लेकिन अगर हम आज की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने जिस तरीके का, मैं चूँकि DC भी रहा हूँ इसलिए मैं उन सारे इक़दाम का शाहिद भी हूँ कि उस सिचुएशन में जब पूरी दुनिया को ये लग रहा था कि शायद हम इस बीमारी से इस तरीके से वापस नहीं आ पाएंगे, शायद इस इम्तिहान का मुकाबला हम नहीं कर पाएंगे। जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट लेवल पे अवेलेबल है और जिस तरीके से उसमें काम हुआ है, एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट मैं बताऊंगा कि वो ज़िंदगी में मैं कहता हूँ कि अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। मैं मंजूर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने, जब मैं DC था तो मुझे तब पता लगा कि ये नॉर्थ में भी जो है ये काम करते हैं। और सबसे बड़ा जो टूरिस्ट फ्रेटर्निटी में जो मैं इनके मुंह पे तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी सब में वो ये है कि कम्युनिटेरियन फीलिंग। इन्होंने मुझे पहले कहा कि मेरा पहला हक जाता है जो टूरिस्ट ट्रेड फ्रेटर्निटी मेरी है, जिनको इस वक्त ज़रूरत है मदद की। और पहले सब लोगों को हमें इम्प्रेशन यही होता है कि यमजान या से टूरिस्ट ट्रेड फ्रेटर्निटी मंच शायद लखपति से, लेकिन यहाँ आकर के मुझे पता लगा कि वहाँ कितने लोग वो है जिनका गुजारा दिन की कमाई पे होता है। और आज के दिन पे मैं यहाँ पे बरमला ये एक्सेप्ट करूँगा कि हमारे ऑनरेबल LG साहब को बहुत बहुत मुबारक है जब उनके कानों तक ये बात पहुँचाएंगे कि जनाब हमारे वो लोग भी हैं जो दिन में कमाते थे, शाम को खाते थे, लेकिन अब उनकी कमाई पिछले जो है 1 साल से नहीं हुई है। तो सारे कामों को छोड़ करके उन्होंने जो कुछ भी इन हालात में बन पाया उनसे उन्होंने मदद की और 11 महीने का जो रिलीफ उन्होंने दिया है। भले ही 1,000 लोग भी ये कहा जनाब 1,000 से क्या होगा, लेकिन जब हमारे पास है हमने उनको कहा कि इस वक्त की जो सिचुएशन है उसमें तो ये बहुत बड़ा ये है कि आप हमदर्दी ही दिखाएं, वो 10 पैसे की हमदर्दी क्यों नहीं। और मामलो साहब ने जब मुझे पहले कहा जनाब मेरा पहला जो ओब्लिगेशन है टूर्स में फैकल्टी है, यहाँ बहुत सारे मुस्तहिक तो हमने 2-4 बड़े कैंप किए, मैं उसके लिए भी इनको मुबारकबाद देता हूँ। इससे ज़्यादा जो मुबारकबादी का हक ये है कि हमारी जो कुछ लाइफ लाइन्स हैं रोज़गार के हवाले से, टूरिज़्म के हवाले से, जैसे खुशहाल सर,
जैसे देखिए जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन वहाँ किया है एज एनवायरमेंटलिस्ट भी, और ये जानकर कि ये एक इबादत है, शायद मेरे ख्याल से मेरी वही अंडरस्टैंडिंग है जिस तरीके से उसको ले रहे हैं, मुझे लगता है कि आज सबसे बड़ा हमारे पास एग्जाम्पल है कि किस तरीके से वॉलंटरी तौर पर हम सिर्फ एक शोबे में काम नहीं कर सकते, हमें मल्टी डायमेंशनल बनना पड़ेगा, तब हम जाकर के अपने समाज को, अपने कौम को आगे बढ़ा सकते हैं। तालीम तो है ही है, किसी के लिए खाने पीने का इंतजाम तो करना ही करना है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म गोल है, जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस है, उसके बारे में मेरे ख्याल से बहुत कम लोग सोचते हैं। और मैं नवांग साहब को मुबारकबाद देता हूँ और उनकी पूरी टीम को, नाटा को मुबारकबाद देता हूँ कि ये उस पैरामीटर पे सोचते हैं कि हमें ओवरऑल लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी चाहिए। और मैं अपनी तरफ से ज़ाती तौर पर यहाँ जितने मोअज़्ज़ज़ लोग बैठे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं ज़ाती तौर उनके काम से और उनके ज़ाती ज़िंदगी से मेरी वाबस्तगी रही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसलिए उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसमें ख़ास तौर से हमारे डॉक्टर मुश्ताक महबूब साहब हैं। सारे लोग जानते हैं कि कश्मीर में इनका कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है हेल्थ के सेक्टर में। वो जो आज जिन लोगों को यहाँ अपना हक मिल रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा हम कुछ डिग्री बांट रहे हैं, जिनको हक मिल रहा है, जिसके वो हकदार हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने मंजूर साहब को, इनकी ऑर्गेनाइजेशन की टीम को ये मौका दिया है कि ये सादत इनको हासिल हो रही है कि उन हकदारों तक वो हक पहुँच रहा है, और हमें भी ये मौका मिल रहा है कि हम उनकी पजीराई भी कर रहे हैं और देने वालों की भी पजीराई कर रहे हैं। और मैं मंजूर साहब को, उनकी पूरी टीम को ये यकीन दिलाता हूँ कि ऑफिशियल कैपेसिटी में हो या मेरी ज़ाती कैपेसिटी में, इंशाल्लाह मेरी ज़ाती कैपेसिटी में भी ये जो भी मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे, और सरकारी तौर पर जो भी रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एज डायरेक्टर टूरिज्म मेरी जो फैटर्निटी है, मेरी जो फैमिली है टूरिज्म की, उनको मेरे ज़रिए से जो भी मदद लीगली तौर चाहिए, जो भी सपोर्ट लीगली चाहिए, इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगा। और मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने कोई तूफ़ान किया है, हमने टूरिज्म को वापस लाया है, जैसे लोग अक्सर मीडिया वाले भी कहते हैं, बाकी लोग भी कहते हैं। हमने वही किया कि जो हमें करना चाहिए, जिसके लिए हमें कुछ लोग इसको चेट के तौर पर लेते हैं, कुछ लोग इसको पैशन के तौर पर लेते हैं। ये जान कर कि हमारे पास जो इस वक्त कुर्सी है, हमारे पास जो अहदा है, ये एक अमानत है, और अमानत जो है देने वाला देना भी जानता है और लेना भी जानता है। जो इस हकीकत को समझते हैं और जिस हकीकत के तौर पर अमल करते हैं, मुझे लगता है वो लोग कामयाब हैं। और मैं या मेरे सेक्रेटरी साहब हैं या मेरी बाकी टीम, पूरी टीम, वो इसको ऐसे पैशन के तौर पर लेते हैं। मैंने भी अपनी टीम को वही कहा है कि आपको भले ही पर्सनली तौर पर तकलीफ होती हो, बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई है। For the valuable time and valuable inputs shared with us by Director Saab, I would request Mansoor Mahmood Saab to please present, and other dignitaries to please present a shawl to Director Saab as a mark of appreciation and being with us today here and sharing valuable inputs. Can we have a huge round of applause? आइए आप आखिर में ये आप सब याद रखें। और जब मेरे पास ये अल्फाज ये आया तो बहुत डर लगता है। एक दोस्त ने मुझे ये भेजा था, मैं आपको ये पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। ऐ परवरदिगार, मुझे वो ताकत न दी जिसमें मैं दूसरों को कमज़ोर करूँ, मुझे वो दौलत न दी जिसकी खातिर मैं दूसरों को गरीब समझूं, मुझे वो इल्म न दी जिसमें अपने सीने में छुपा के रखा, मुझे वो बुलंदी न दी कि मुझे पस्ती में कुछ नजर न आए, मुझे वो सब कुछ दे जो मैं दूसरों में बांट सकूं और सबके बराबर हो जाए।
Thank you so much everyone for hearing this mission. So we now quickly proceed with our memento presenting ceremony. So Kashmir Welfare Trust would like to present mementos to different individuals who have contributed to our society in different ways and means. आज ये जो हमारा मिशन गुशनेर के तहत ये जो आज का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम था, इसकी दो वजह थी। एक तो यहाँ के जो NGOs है जो कमेंडेबल जॉब करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको भी हमने बुलाया था, उनको हमने हौसला अफजाई की। और जो गाँवों में रहते हैं, ख़ासकर रूरल एरियाज़ में, अपर एरियाज़ में रहते थे, तो उनको हमें, क्योंकि विंटर में वहाँ पर जाना बहुत मुश्किल होता है, तो हमने फ़ैसला किया था कि हम उनको यहीं एड्रेस करेंगे। तो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह आज 200 फैमिलीज़ को हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया। कांगड़ी, कमल, हेरन, फूड पैकेट्स जो तकरीबन 1 महीने के लिए एक फैमिली के लिए होता है। और हर एक चीज़ में बार बार हर इस पर स्ट्रेस करता हूँ कि जो भी देना होगा कम ही दे दो, मगर क्वालिटी दे दो। तो आपने आज देखा होगा कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स है और आइडेंटिफाइड लिस्ट है। बहुत बेचारे गुर्बत में रहते हैं, आधे तो इनमें टिन शेडों में होते हैं, मुसीबत में होते हैं। तो इनको यहाँ हमने लाया और यहाँ आज इनके साथ बस अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और यहाँ पर मेरे जो मौजूद मेहमान आज आए थे, उनको भी हमने मदऊ किया, आज उनको थोड़ा हौसला अफजाई की। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ डायरेक्टर टूरिज़म साहब का, उनका मुझे पता है आजकल वो कितने बिज़ी हैं। तो वो आज यहाँ आए और एज ए चीफ गेस्ट, तो उन्होंने भी आज अपने हाथ से थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन की है। मैं अपनी टीम कश्मीर वेलफेयर ट्रस्ट, नेलको निगेंदे कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन और नाटा निगुइन टूरिस्ट ट्रेड एसोसिएशन और बिलालिया के एजुकेशन इंस्टीट्यूट का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हर वक्त मेरा साथ देते हैं। और मामूली बात नहीं होती है इकट्ठा करना, फिर वेल डिसिप्लिन इस तरह काम करना। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब हम मिलकर काम करते हैं। तो मेरा एक स्लोगन होता है कि हम हर चीज़ में, चाहे हमारे वो वाटर बॉडीज़ हो, एनवायरमेंटल इशूज़ हो, चाहे रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, चाहे इन गरीबों को एड्रेस करना हो, तो हम एक और नेक बन के काम करें। इसमें आप देख लीजिए यहाँ पर 1-2 ग्रुप इस वक्त शानदार काम कर रहे हैं। दोनों को हमने यहाँ पर बुलाया था। एक है फूड फॉर ऑल, फूड फॉर पुअर, दूसरा है क्या कहते हैं उसको, कारवान। दोनों में NGOs है। और जिस इलाके में कोई कहीं प्रॉब्लम होती है
تو اس علاقے کے NGO کو فون آتا ہے کہ بھائی یہ ہے. اگر وہ نہ ایڈریس کرتے ہیں تو ہم وہاں پہنچتے ہیں. اسی طرح پہاڑوں پہ جانا ہوتا ہے, خاص کر ہمارا شملارن سائڈ ہے, وہاں انفارچونیٹلی ابھی 50 مکان گر گئے, وہ لینڈ سلائڈ میں آئے. اسی طرح ہم اوڑی سائڈ جاتے ہیں, ہندوارہ سائڈ جاتے ہیں, تو ہمارا نارتھ سائڈ ہے اور سٹی ہے. تو اس میں ہم جتنا ہمارے سے ہو سکتا ہے ہم کرتے ہیں, چاہے وہ مکانوں کے ذریعے ہو, چاہے فوڈ پیکٹ ہو, چاہے وارم کلاتھس ہو. بس اس میں اللہ کا شکر ہے, اب جتنا بھی کام کرے بس اللہ اس کو قبول فرمائے.